Dear students, today we are going to start Maths Part 1, Chapter 1, Angle and its Measurement. Exercise 1.1. Now see question number 1a. Determine which of the following pairs of angles are coterminal. So for the coterminal angles, you should refer the definition of coterminal angles. So what is coterminal definition? Coterminal angles are that angles which initial rays and terminal rays are same or coincide. So they are called coterminal angles. Now we should check these angles. First one, 210 degree and minus 150 degree. So for the mathematical calculation, since 210 degree minus of 150 degree equal to 210 plus 150 equal to 360 degree. So this is the one way of solving of coterminal angles. So for the mathematically, if difference of the given angles is multiple of 360 degree, then they are coterminal angles. Otherwise, you can check your angles by the diagram. First, you have to draw x dash and y dash means axis. After that, plot or make these two angles in the quadrant system. So 210 degree is the positive angle. 210 degree is the positive angle. So we should draw from x-axis. So starting from x-axis and it goes, this from here to here it is 90, 90 plus 90, 180 and 180 plus 30, it is 210 degree. Okay. Now second angle is minus 150 degree. So go in the negative direction or you can say clockwise. So it is 90 and 90 plus 60. This is minus 150 degree. This side minus 150. So we see that initial ray OA for both the angles and terminal ray is OP for both the angles. Means terminal rays coincide and initial rays are same for both the angles. Therefore, these two angles are coterminal angles. So you should write here initial ray and terminal ray coincide. So they are coterminal angles. Okay. So see once again, how will you check mathematically? So you have to check mathematically for coterminal angles by solution larger angle minus smaller angle. क्या करना है? Larger minus smaller. So since 210 minus 150, so minus into minus becomes plus. So this will be 210 degree plus 150 degree and it is equal to 360 degree. तो अगर कोई भी जैसे टू एंगल्स अगर उनका डिफरेंस 360 या 720 या 1080 डिग्री एटसेट्रा मीन्स मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री है, 360 के टेबल में आता है, तो दैट एंगल्स आर नोन एज कोटर्मिनल एंगल्स. अदरवाइज डायग्रामेटिकली, तो डायग्रामेटिकली में क्या करोगे? ड्रॉ द डायग्राम. पॉजिटिव एंगल दैट इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिस साइड, दिस इज 210. एक रफ डायग्राम होता है ऐसा, जैसे को चेक करो 90 90 180 180 प्लस समथिंग मीन्स इट गोज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने ड्रॉ कर दिया. यहाँ पर कोई प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है कि प्रोटेक्टर से ही ड्रॉ करो. एक जस्ट एक गेस कर लो 30 डिग्री यहाँ तक आता है, या प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हो अगर करना चाहते हो. तो कैसे डिवाइड करोगे कि 210 डिग्री, देखो एक क्वाड्रेंट में कितना होता है यहाँ पर, दिस इज 90, दिस इज 90, 180 हो गया, 180 प्लस 30 210, काउंट करते जाओ. तो 210 के लिए एक रे ड्रॉ कर दो, यहाँ पर ओपी हो गई और इनिशियल रे हमेशा ओ एक्स एक्सिस पर रहेगी, दैट इज पॉइंट ए हियर ओ ए. और माइनस 150 के लिए डाउनवर्ड मीन्स क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा. तो यहाँ से आकर के ये माइनस 150, देखो 90 और 60 और 60 और ये 30 बनाए थे, टोटल मिला के है 90, राइट. तो 210 डिग्री इधर से आ गया अपवर्ड साइड और ये माइनस 150 डिग्री डाउनवर्ड साइड. तो दोनों ही रे एक ही है. देखो ओपी माइनस 150 के लिए भी टर्मिनल रे यही है और 210 डिग्री के लिए भी यही रे टर्मिनल रे है. तो देयरफॉर you can say initial ray and terminal ray coincide.
तो दे आर कोटर्मिनल एंगल्स। तो ये सबसे इजी और यू कैन से सबसे सिंपल वे है हाउ टू फाइंड कोटर्मिनल एंगल्स। तो मैंने दोनों वे से बताया है, तो चाहे तो डायग्राम से सॉल्व करो या मैथमेटिकली सॉल्व करो, लेकिन यहाँ पर इसने बताया है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स और कोटर्मिनल एंगल। मतलब यहाँ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो डायरेक्टली मैथमेटिकली जैसा ये 3 स्टेप्स से भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ से, या डायग्राम से, या दोनों दिखा सकते हो एज यू लाइक। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। तो इट्स सेकंड क्वेश्चन इज 360 डिग्री एंड -30 डिग्री। तो चलो देखते हैं इसको। सिंस 360 डिग्री माइनस ऑफ -30 लार्जर माइनस स्मॉलर, तो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, तो इट इज इक्वल टू 360 प्लस 30 डिग्री, total becomes 390 degree. So we see that 390 degree is not multiple of 360 क्योंकि 30 remaining रह जाएगा, right? So therefore they are not co-terminal angles। यहाँ से भी आंसर मिल गया। और दूसरा चीज यहाँ पर देखो कि 360 डिग्री हमने यहाँ पर पॉजिटिव एंगल स्टार्ट किया, देखो 360 डिग्री रोटेट्स एंड अगेन इट रीचेस एट रे ओ ए, मीन्स रे ओ ए पर ही वापस ये फिनिश होता है, ये फर्स्ट के लिए। एंड -30 डिग्री ये देखो डाउनवर्ड यहाँ पर है, ये -30 यहाँ पर आ रहा है। तो दोनों की इनिशियल रे तो हम सेम ले लिए, लेकिन टर्मिनल रे डिफरेंट है, राइट? so they are not co-terminal angles, so terminal arms or rays are different, so they are not co-terminal angles। means initial rays coincide, initial rays are same but terminal rays do not coincide, therefore they are not co-terminal angles। तो co-terminal angle फाइंड करने का सबसे आसान तरीका एक डायग्राम से है और या तो फिर सॉल्व करके है। तो किसी भी वे से सॉल्व करो, दोनों से आसान है, इजी है, कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। Now see third one, -180 degree and 540 degree. So which one is bigger? Yes, 540 degree. So since 540 degree minus of 180 degree, it is equal to 540 degree plus 180 degree equals 720 degree. So it can be written as 2 into 360। बस ये शो करने का तो लिखिए, यहाँ पर एम है कि ये मल्टीपल ऑफ 360 दिखा रहा है कि 2 into 360, राइट? So therefore they are co-terminal angles। Otherwise you can draw a figure also। तो 540 डिग्री अपवर्ड मीन्स एंटी क्लॉकवाइज आओगे और -180 डिग्री डाउनवर्ड दैट इज क्लॉकवाइज आकर के रेडी करोगे, दोनों का टर्मिनल रे सेम मिलेगा, तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो को टर्मिनल एंगल्स अब यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने देखो डेफिनेशन अपने प्रीवियस लेक्चर में दे दिया था, तो डेफिनेशंस श्योर रिवाइज करने के बाद फिर लेक्चर को फॉलो करो। नाउ फोर्थ वन, -405 डिग्री एंड 675 डिग्री। सिंस 675 डिग्री minus -405 degree, so this is equal to 675 plus 405। तो अब इनको हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 1080 डिग्री, which can be written as 3 into 360। so this is which is multiple of 360, so therefore they are co-terminal angles। so yes, they are co-terminal angles। now क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ वन में क्या करना है अभी? 860 डिग्री and 580 degree, both the angles are positive। so since 860 minus 580 equal to 280, so 280, so which is not a multiple of 360, so you can say no, they are not co-terminal angles। otherwise you can solve this question by diagrammatic form। एक डायग्राम ड्रॉ करके, एक्सेस ड्रॉ करके एंगल के थ्रू शो कर सकते हो। okay, so by diagrammatic representation or by calculation। now see question number 6th, 900 डिग्री एंड -900 डिग्री। तो ये क्वेश्चन को मैंने दोनों मेथड से शो कर दिया है, यहाँ से इजीली समझ सकते हो, ठीक है? तो नाउ वी स्टार्ट हियर। since 900 degree minus of -900,
So 9 minus minus plus, that is 900 plus 900 becomes 1800 degree. So 1800 degree is the multiple of 360, right? It is 5 into 360. यहाँ पर लिख सकते हो. तो yes, they are co-terminal angles. अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें डायग्राम से सॉल्व करके दिखाना है कि दोनों की इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे सेम है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिव एंगल को 900 डिग्री. पहले तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सेस ड्रॉ करेंगे. एक्सेस ड्रॉ करने के बाद रे ओ ए फिक्स कर लेते हैं. दिस इज ओ ए. व्हेन ओ ए रोटेट्स अबाउट एक्स एक्सिस, देन you should start from here. This is देखो 90, again 90, again 90, again 90. So this is 360, means one rotation completed. फिर से यहाँ पर सेकंड राउंड चालू होता है और देखो ये सेकंड राउंड भी यहाँ पर आके कंप्लीट होता है. मीन्स 720 डिग्री हमने कंप्लीट कर लिया. तो 720 के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर 90, 810 डिग्री. तो 810 प्लस 90 बिकम्स 900, राइट? तो ये 900 एंगल अपना कहाँ पर आके कंप्लीट हुआ? नेगेटिव ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर कंप्लीट है. मींस ये जो ओपी, अब हम लोग सपोज कर लो ओ एक्स डैश और ओपी, ये अपना हो गया टर्मिनल रे, करेक्ट? तो ये 900 डिग्री यहाँ पर आके कंप्लीट होता है. अब देखते हैं कि माइनस 900 डिग्री कहाँ पर कंप्लीट होता है. तो देखो माइनस 900 के लिए हम लोगों को क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा और वो डाउनवर्ड स्टार्ट करोगे. तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, देखो 900 के लिए दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस, ये कितना हो गया? 360. फिर सेकंड राउंड यहाँ से स्टार्ट होता है. फिर से ये सेकंड राउंड अगेन कंप्लीटेड हियर. दिस इज 720. तो 720 प्लस 180 ये ऐड करोगे, देखो 90 यहाँ पर और 90 यहाँ पर, ये हो गया माइनस 900 डिग्री. तो दोनों एंगल मैंने शो कर दिया है कि माइनस 900 डिग्री एंड प्लस 900 डिग्री बोथ आर completed on OX dash, that is at OP. So terminal ray is OP, initial ray is OA for both the angle, therefore they are co-terminal angles. तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. 900 and minus 900. So you can draw for any degree or you can decide mathematically for any degree. तो ये अपने co-terminal angles के लिए यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है. तो इस तरह से co-terminal का कोई भी क्वेश्चन होगा you can solve easily. और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू आर न्यू स्टूडेंट ऑन माय चैनल, तो यू शुड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और बेल आइकन भी प्रेस करके रख दीजिए. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1B. अभी तक 1A हम लोगों ने कंप्लीट किया, करेक्ट? Just you have completed question number 1A from exercise 1.1 math part 1. Now see question number 1B from same exercise, means exercise 1.1. Draw the angles of the following measures and determine their quadrants. Draw and determine their quadrants means ये एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में इनका टर्मिनल रे कंप्लीट होता है, वो क्वाड्रेंट को हमें दिखाना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, मीन्स एक्सेस. और देखो यहाँ पर हम क्वाड्रेंट को भी लिख लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ये हो गया यहाँ पर क्वाड्रेंट्स. अब इसके बाद देखते हैं कि एंगल क्या है. तो क्वेश्चन नंबर 1B फर्स्ट, दिस इज माइनस 140 डिग्री. तो माइनस 140 डिग्री, दैट इज वी शुड गो थ्रू clockwise. Start from here, this is 90, 90 plus 50, that is here 140. So this will be minus 140 degree angle and terminal ray OP, this is O, this is OP. So OP lies in third quadrant. We see that it lies in third quadrant क्योंकि देखो अपना डाउनवर्ड शुरू करोगे, यहाँ से स्टार्ट करके डाउन आना है. ये 90 plus 50. So you can make this angle by protractor or directly only rough diagram expected. So this is minus 140 degree. So it lies in third quadrant. तो क्या लिखना है? थर्ड क्वाड्रेंट. बस इतना सा ही बताना है.
चलो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। 250 डिग्री। Now draw x and x dash, y and y dash, that is axis. 250. So start anti-clockwise, means from here in this direction 90 plus 90 180, 180 plus 70. तो 70 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट को क्रॉस नहीं करेगा, तो 70 डिग्री मीन्स रे ओ पी लाइज हियर, यहाँ पर पी लिख देना और यहाँ पर ए, तो रे ओ ए इनिशियल एंड ओ पी टर्मिनल। सो दिस इज 250 डिग्री एंगल एंड इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ये टू क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिया डायग्राम बनाने के लिए। यू शुड ड्रा योर सेल्फ दिस टू एंगल्स 420 डिग्री, लेकिन उसका आंसर यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड 750 डिग्री, ये टू राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखो 360 प्लस 360 720, 720 के बाद फिर से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, 30 डिग्री और ऐड करोगे तो इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बोथ एंगल्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन डायग्राम ये स्टूडेंट को सेल्फ अपने आप से बना के प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, नाउ सी फिफ्थ 945 डिग्री। तो 945 डिग्री के लिए फर्स्ट वी ड्रॉ एक्सेस एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। आफ्टर दैट स्टार्ट योर ड्राइंग। दिस इज वन राउंड कंप्लीटेड। सेकंड राउंड को 360 362 राउंड कंप्लीट हो गए, कितने हो गए 720, और उसमें प्लस हम लोग ऐड करते जाएंगे यहाँ तक 900, और ये 45 डिग्री और आगे आ जाओगे तो 945 डिग्री इनिशियल रे ओ ए एंड टर्मिनल रे ओ पी। ठीक है, तो यहाँ पर 945 डिग्री। अब ये देखो किस क्वाड्रेंट में कंप्लीट होता है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। क्लियर? तो बहुत ही अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। So ray OP lies in third quadrant, therefore 945 degree lies in third quadrant. Is terminal arm. Now see sixth one, it is 1120 degree, so you should draw the diagram and it lies in first quadrant. Clear? क्योंकि इसको कंप्लीट करते करते अपना 360 से पहले क्या करना है, इसको 360 से डिवाइड कर सकते हो, जितना कोसेंट आएगा उतने हमें कंप्लीट राउंड्स लेने हैं, और जो रिमाइंडर आता है उतना हमें देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में आता है, बस इतना ही काम करोगे हो जाएगा। 1120 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। -80 डिग्री इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि देखो डाउनवर्ड आओगे तो इस क्वाड्रेंट में कंप्लीट रहेगा, यहाँ पर 80 डिग्री लगभग यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ से रे ड्रॉ करोगे तो -80 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर -330 डिग्री, तो -330 डिग्री वी शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट गोज टू दिस, ये कंप्लीट होते होते ये आ जाएगा यहाँ पर फोर्थ अपना, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ से स्टार्ट किया और फर्स्ट में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से रोटेट होते 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 यहाँ पर कंप्लीट होगा, तो ये किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर से देखो 1120 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, -80 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, -330 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट एंगल 500 डिग्री, -500 डिग्री। तो -500 डिग्री के लिए हम लोगों को क्या करना है, देखिए 360 यहाँ पर एक राउंड कंप्लीट करोगे, 360 हो गया, प्लस हेयर 450 98 कर दिए, और प्लस 50 अगेन 500 डिग्री, तो दिस इज -500 डिग्री रे ओ पी एंड दिस इज इनिशियल रे ओ ए। तो इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, देयरफॉर -500 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कंप्लीटेड। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है -820 डिग्री, 10th वन, क्वेश्चन नंबर 10, -820 डिग्री। फर्स्ट ड्रा द कोऑर्डिनेट एक्सेस, दैट इज x x डैश एंड y y डैश। तो -820 डिग्री, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 360 से। तो 360 टू जा 720, तो 720 मीन्स 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट, 2 राउंड कंप्लीट होगा, 2 रोटेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद जब 2 कंप्लीट रोटेशन होने के बाद
हमारा कितना एंगल बचेगा 100 डिग्री। तो देखते हैं इसको, देखो यहाँ से माइनस है तो डाउनवर्ड स्टार्टिंग होनी चाहिए। देखो डाउन, दिस इज 360, अगेन 360 हो गया 720, फिर 720 प्लस 90 एंड प्लस 10, ये हो गया -820 डिग्री। तो वी सी दैट this one is also lies in third quadrant, first quadrant, second quadrant, third and fourth. So -820 degree lies in third quadrant. तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपना क्वेश्चन नंबर 1B बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सिर्फ हमें क्वाड्रेंट की प्लॉटिंग करनी थी एंगल्स के लिए। अगर पॉजिटिव एंगल है तो हमें अपवर्ड मीन्स एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस स्टार्टिंग होनी चाहिए, और वहाँ से जितने भी रोटेशंस कंप्लीट होते जाएंगे वहाँ तक कंप्लीट करके अपने एंगल को प्लॉट करके सिर्फ क्वाड्रेंट को डिसाइड करना है, करेक्ट। और अगर नेगेटिव एंगल है तो हमें फ्रॉम एक्स एक्सिस डाउनवर्ड स्टार्ट करना है, मीन्स क्लॉकवाइज जाना है, और जिस क्वाड्रेंट में टर्मिनल रे कंप्लीट होती है दैट वन इज योर फाइनल आंसर। तो ये तो समझ में आ गया सबको, क्लियर। तो इट मीन्स हाउ टू डिसाइड द क्वाड्रेंट्स फॉर पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल्स, क्लियर। ओके, तो इसको सेल्फ प्रैक्टिस भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको केवल डायग्राम को ड्रा करते जाओगे, सेल्फ प्रैक्टिस भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स ले करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अब जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। जैसा कि मैंने बताया था फॉर्मूले में कि रेडियन कन्वर्जन एंड डिग्री कन्वर्जन, ये फार्मूला दिया गया है, राइट। तो सी योर फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, 85 डिग्री। तो 85 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। So how will you convert in radians? Since 1 degree equal to pi upon 180 radian, this is formula. Your question is 85 degree. Your formula is 1 degree equal to pi upon 180 radian. Therefore 85 degree equals 85 multiplied by pi upon 180. तो अब ये हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखो 5 की टेबल से 85 को डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा, तो क्या मिलता है 17, और पाई अपनी प्लेस पर एज इट इज है तो 17 पाई, और 5 से ही 180 को डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 36, मीन्स 85 एंड 180 गोज बाई 5, 5 से इनको कट करोगे तो क्या मिलेगा 17 पाई अपॉन 36 रेडियन। मीन्स एनी क्वेश्चन अगर हमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो फार्मूला क्या लिखोगे वहाँ पर, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि उसी फार्मूले से ये फार्मूला बना हुआ है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। और जब रेडियन टू डिग्रीज जाना होगा तो हम लोग इसका ठीक उल्टा जाएंगे, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा जब भी क्वेश्चन आएगा, तो अभी यहाँ पर मिक्स नहीं करते हैं। अभी सिर्फ इतना ही देखते हैं कि 85 डिग्री इक्वल टू 85 इंटू पाई अपॉन 180। तो इसको हमें देखो 85 पाई अपॉन 180, तो इसको हमें क्या करना है डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद हमने 5 से दोनों को डिवाइड किया तो क्या मिला 17 पाई अपॉन 36 रेडियन, क्लियर। ये समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 250 डिग्री, 250 degree. So first work you should write the formula. Since 1 degree equals pi upon 180 radian. Since 1 degree equals pi upon 180 radian. Therefore 250 degree equals 250 into pi upon 180. 250 into pi upon 180 equals, अब इनको भी क्या करना है, देखो 0 गोइंग बाई 0, 0 0 कट कर दो, और इसके बाद अब क्या करोगे, therefore 250 degree equals 250 into pi upon 180, so it is 0 going by 0,
So this is equal to 25 pi upon 18 radian. 25 pi upon 18 radian. This one is answer. Now see third one, minus 132 degree. Since 1 degree equals pi upon 180 radian, therefore minus 132 degree equals minus 132 into pi upon 180. अब इसको भी हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल करने के बाद हमें यहाँ पर आंसर जो भी आएगा वो लिख करके रखिए। तो किस टेबल से इसको कैंसिल करोगे? बाई 12। देखो 12 वन जा 12, 12 वन जा 12 एंड 12 15 जा, तो इट इज इक्वल टू माइनस 11 पाई अपॉन 15 रेडियन। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। हमें जो भी एंगल दिया है हम लोग क्या करेंगे, उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें एंड सिंप्लीफाई, वी गेट माइनस 11 पाई अपॉन 15 रेडियन। So minus 132 degree equal to minus 11 pi upon 15 radian. Now see next one, fourth, 65 degree 30 minute. अब सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चंस में हो सकती है कि 65 डिग्री 30 मिनट। तो 65 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स, हम 30 मिनट को क्या लिखेंगे, हाफ डिग्री, 30 अपॉन 60। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 65.5 डिग्री, और यू कैन से 65 एंड हाफ डिग्री, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो इट इज इक्वल टू 65.5 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, 65.5 इंटू पाई अपॉन 180। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो ये 65.5 है, तो पहले इंटू 2 यहाँ भी कर देते हैं और इंटू 2 यहाँ भी कर देते हैं, मीन्स मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ लिख सकते हो। तो प्लीज नोट दैट मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वी गेट 65.5 इंटू 2 becomes 131 pi and 180 into 2 becomes 360. So it is equal to 131 pi upon 360 radian. This means 65 degree and 30 minute is equal to 131 pi upon 360 radian. Completed. Now see fifth one, 75 degree 30 minute. तो 75 degree 30 minute को भी 75.5 degree means 30 minute equal to half degree, so it is equal to 75.5 degree. So since 1 degree equals pi upon 180 radian, therefore 75.5 degree equals 75.5 into pi upon 180. तो चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाई देते हैं कैसे दिखाना है, कैसे शो करना है। तो 75.5 इंटू 2 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 2, 180 इंटू 2, तो 75.5 इंटू 2 becomes 151 pi as it is, means 151 pi upon 180 into 2, 360. So this is equal to 151 pi upon 360 radian. Here multiplying and dividing by 2. इस तरह से यहाँ इस क्वेश्चन में भी शो कर सकते हो, into 2 upon 2. That is 75 degree 30 minute equals 151 pi upon 360 radian. This is सर्कुलर मेजर, रेडियन को सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं। तो ये अपना डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन किस तरह से होता है, चाहे वो डेसिमल का हो या मिनट का हो या सेकंड का हो, सभी कन्वर्ट होते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। 40 डिग्री 48 मिनट। तो 40 डिग्री 48 मिनट कैन बी रिटन एज 40 डिग्री प्लस 48 अपॉन 60। 48 अपॉन 60 क्यों लिखा गया, यहाँ पर उसका रीजन लिख लो। यहाँ पर ये 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, सो वी शुड डिवाइड बाय 60 टू कन्वर्ट इनटू डिग्रीज फ्रॉम मिनट। तो 40 डिग्री प्लस 48 अपॉन 60 कर देंगे तो ये भी क्या होगा, 48 मिनट का डिग्री में कन्वर्जन हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, डिग्रीज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लोग 12 की टेबल से डिवाइड करते हैं, 12 4 जा एंड 12 5 जा। तो दिस इज 40 इज टू 4 अपॉन 5 डिग्रीज, मिल गया। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फार्मूला, सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, therefore 40 is to 4 upon 5 degree, or you can say here 40 degree 48 minute equal to 204। यहाँ से देखो 40 into 5 कितना हुआ 200 प्लस 4
204 अपॉन 5, तो 204 अपॉन 5 डिग्री क्या मिल गया यहाँ पर 204 अपॉन 5 डिग्री। अब ये 204 अपॉन 5 डिग्री को जब हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 204 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 180 रेडियन। अब इस पूरे नंबर को सिंप्लीफाई कर लेना है। पूरे नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलता है 51। इसको 4 से डिवाइड किया, देखो 4 5 जा 4 1 जा तो 51 और इसको 4 से करोगे तो 45 और 45 इंटू 5 दैट इज 225। तो ये 4 से कट होता है, ठीक है, दोनों को 4 से कट करोगे और वी गेट 51 पाई अपॉन 225 रेडियन। देयरफॉर 40 डिग्री 48 मिनट इक्वल्स 51 पाई अपॉन 225 रेडियन। तो एक आंसर ये जो टेक्स्ट बुक में है ये टेक्सटुअल आंसर है यहाँ पर कि 40 डिग्री 48 मिनट इक्वल टू 51 पाई अपॉन 225 रेडियन। बट इट गोज बाय 3, ये 3 से वापस कट होता है, लेकिन बुक में यही आंसर लिखा है, इसलिए आंसर शो करने के बाद मैंने इसको वापस सिंप्लीफाई किया है। तो इट इज इक्वल टू 17 पाई अपॉन 75 रेडियन, क्योंकि 3 से कट करोगे दोनों को, 3 से भी डिवाइड होता है, तो इट इज इक्वल टू 17 पाई अपॉन 75 रेडियन। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, को टर्मिनल एंगल एंड ड्रॉ द एंगल्स इन द क्वाड्रेंट सिस्टम एंड डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर है, इनको रीप्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते फिर से सभी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से पूरे 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1A 1B एंड क्वेश्चन नंबर 2 that is degree to radian and how to decide co-terminal angles and how to plot the angles in the quadrant system अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।